Hello. So, welcome to all. In this chapter or in this lecture, we first read again the bitwise operator. Okay. So, what is a bitwise operator? A bitwise operator act on operands as if they were strings of binary digits. It means binary operators actually act on the binary digits which are 1 and 0. I have previously explained you that the 1 and 0 is indicating as a binary operator, binary language, which is in turn converted into machine language. The 1 here refers to on and the 0 here refers to off. So the on and off conditions are sent to the machine and machine easily understand what the task or what the operation is to be performed. Okay, so we have an operator that can operate directly on the bits, not the value. Okay, so first we have to learn that how to calculate the decimals or the binaries of a particular decimal or binary. Okay, so first we have to learn the concept of binary to decimal and decimal to binary. Okay, we will learn the further number systems also in our future lecture, but right now we are only focused on the decimal number system and the binary number system. The decimal number system is the system which you and me are using from the beginning. It means the number system which is bounded in from 0 to 9 and its combinations. These all are called decimal number system, like 548, 193, 19, 10,000, 1 lakh, 20 crore. These all numbers are used by us. So it is a decimal number system. The word decimal means DAC. The first three letters are DAC. The DAC here refers to 10. It means a number system which is encompassed by 10 digits, which is 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. It means total 10 digits in there. Then we can say that it is a decimal number system. And what is the binary number system? A number system which is actually used by the machine is called the binary number system. The word binary has initial BI, which refers to 2. It means it only accepts two numbers, which is either be 0 or 1. Okay, so first we have to learn how to convert the decimal number into binary number and vice versa. So for that, there is a trick here. There is a long method also, but right now we are doing the trick here that easily write the 1, then 2, then double it, 4, then double it, 8, then double it, 16, and so on. And for the number system which you want, for the number which you want decimal for it, let's suppose I have right here 1011. Again, this 1011 is also in decimal, is also in binary. So how can I differentiate that this number is a binary number? So what should I do? I write the parenthesis rounded and I write 2 here. This 2 indicate that this number is a binary number. Again, so where the 1, count the digit. Where there is a 1, count the digit. Okay, the 1 is on 8, on 2 and 1. So the total of this is 8 and 2, 10 and then 11. So it is 11. But how can I judge that it is a decimal number? By writing here as a subscript as 10. Okay. So it is the decimal equivalent of this number. Okay. करेक्ट बेटा, इसको करेक्ट कीजिए भूमिका एंड भाग्यवती, इनको करेक्ट कीजिए बेटा. लेट्स सपोज आई वांट अ नंबर 10111. So what will be the decimal value of that? So easy, we only have to add the numbers. We only have to add the numbers which have 1 below it.
So 16 have a 1 below it, so we count 16. 4 have a 1 below it, 16 plus 4 is 20. 2 below it, 21, 22 and 23. So 16, 4, 4, 20, 22, 23. So the answer is 23. So this is the conversion of binary to decimal. Okay. What if I want to convert from decimal to binary? Let's suppose I have number 15. So what should I do? I first calculate or add the numbers from these places. If my calculation or sum is exist or is greater than the number this, I will skip that number. Okay, how will it will be done like that? First I count 1. Okay, then I count 2, 1, 3. Okay, then 4, 2, 6, 1, 7. Okay, with 8, for 12, 13, 14, 15. This is okay. It means we have got our answer. So this is the answer. This is the easy one. What if I have 23? What if I have 23? What should I do? Let's suppose for this example, we will get the desired result. So calculate the all numbers from the left side. फ्रॉम द लेफ्ट साइड हम इसे कैलकुलेट करेंगे और कैलकुलेट करने के दौरान आप क्या करें, एडिशन करते जाएं. जब आपकी एडिशन इस नंबर से बड़ी हो जाए तो क्या करें, उस नंबर को छोड़ दें, नेक्स्ट नंबर पे आए या आपको वो नंबर फाइंड हो जाएगा. लेट सपोज मैंने 1 काउंट किया, यस 1 + 2 कितना होता है 3, कोई बात नहीं. 4, 2, 6 और 1 7, कोई बात नहीं. 8 और 4 12, 13, 14 और 1 15, कोई बात नहीं. अब मैंने अगर 16 जोड़ा तो 15 और 16 31 हो जाता है, तो ये तो गलत हो गया. तो हम क्या करेंगे, इस नंबर को क्या करेंगे, स्किप करेंगे, इस नंबर को एक्सेप्ट करेंगे. तो 16 और 4 कितने होते हैं 20, 22 और 23. ऐसे हमें आंसर मिलेगा. ठीक है ना. अभी देखो, अभी यही मेथड सीख लो, बाद में मैं इसको और भी इजी तरीके से ट्रिक से सिखा दूंगा. और भी अच्छी ट्रिक है इसमें ही एक ट्रिक और है, उसे सीखेंगे तो और जल्दी हम डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन कर सकते हैं. सो दैट इज बाइनरी नंबर सिस्टम एंड डेसिमल नंबर सिस्टम. सो आवर क्वेश्चन इज हाउ टू यूज बाइनरी ऑपरेंड, bitwise operator on these 1 zeros. Okay. So our first operator is AND. Write the formula for it. Both true, then true. Otherwise false. Here true is referred to as 1 and false is refers to 0. So what should you have to do, that when the given number is 101101 and the second number is 010011, so you only have to judge that whether the both numbers are true or not. If both numbers are true, then you will send the result as true. Otherwise all the result would be false. So here by this AND operator, ये AND operator है, बोलते में इसे AND ही है, दिखता भी AND ही है. ये देखो. ओके, बनाते कैसे हैं, देखो इजी है. एक बनाओ और 2 बना दो, एक बनाया 2 बनाया, बन जाएगा ये. चलिए, ये क्या हो गया 1 and 1, क्या आंसर आना चाहिए 1. 0 1, both true then true. both true है no, both true है no, both true है no, both true है no, both true है no. तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट है बिटवाइज एंड. इट इज नॉट ए सिंगल एंड. अगर आप एंड लिखोगे तो वो अलग ऑपरेटर है. ये कौन सा है, बिटवाइज एंड. ध्यान रखिए, ये है बिटवाइज और. बिटवाइज और क्या कहता है, जस्ट इसका चेंज उल्टा. क्या बोलता है वो, दिस सेज बोथ फॉल्स देन फॉल्स, both false then false, otherwise true. दोनों false है तो रिजल्ट false, बाकी सारे रिजल्ट क्या होंगे true. तो बताइए दोनों false है क्या, नहीं. दोनों false है क्या, no. दोनों false है क्या,
दोनों फॉल्स है क्या, दोनों फॉल्स है क्या, दोनों फॉल्स है क्या, समझ में आया? अगर दोनों फॉल्स होते, लेट सपोज ये दोनों फॉल्स होते तो क्या आंसर आता? फॉल्स आता। चलिए अब बात करेंगे किसकी? बिटवाइज नॉट। बिटवाइज ये जो ऑपरेटर है ये कौन से ऑपरेटर हैं? बाइनरी ऑपरेटर, बिकॉज इट टेक्स टू आर्ग्यूमेंट, इट टेक्स टू आर्ग्यूमेंट। एक और है बाइनरी का, इसको क्या बोलते हैं? पर कौन सा एक्सोर? बिटवाइज। क्या बोलते हैं इसको? बिटवाइज एक्सोर। क्या कहता है ये? आइदर वन देन वन अदरवाइज फॉल्स। क्या कहता है ये? आइदर ट्रू देन ट्रू अदरवाइज फॉल्स। दोनों में से एक भी ट्रू हुआ तो ट्रू, बाकी सारे फॉल्स। इट मींस ओनली वन ट्रू ही होना चाहिए, एक ही ट्रू होना चाहिए वहां पर। तो देखिए दोनों ट्रू है तो फॉल्स आएगा, एक ट्रू है तो ट्रू आएगा, दोनों में से एक ट्रू है तो ट्रू आएगा। दोनों में से एक ट्रू होना चाहिए, दोनों में से एक ट्रू है तो ट्रू, बाकी सारे फॉल्स। इसे क्या बोलते हैं? एक्सॉर। क्या बोलते हैं इसे? एक्सॉर। तो ये तीन जो ऑपरेटर हमने देखे, ये तीनों के तीनों ऑपरेटर किस टाइप के हैं? ये बाइनरी। किस प्रकार के हैं ये? बाइनरी, बिकॉज इट टेक्स टू आर्ग्यूमेंट। कितने आर्ग्यूमेंट है यहाँ पर? टू आर्ग्यूमेंट रखते हैं। क्लियर? रब कर दूं इसे? यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट, टेक इट। डन। ओके, नेक्स्ट इज bitwise operator. What the bitwise? Not bitwise left shift and bitwise right shift. These are the operators. Bitwise left shift, bitwise not, and bitwise. Let's suppose this is the binary operator, binary digit or the value, and I want negation. I want negation. It is called not. Yes, there is a name for it also. It is called ones complement. क्या बोलते हैं इसको? क्या कहते हैं इसको? ध्यान से क्या बोलते हैं इसको? वंस कॉम्प्लीमेंट भी बोलते हैं। ध्यान से लिख लेना कॉपी के अंदर, ये नई चीज बताई है मैंने। इट इज कॉल्ड सो कॉल्ड वंस कॉम्प्लीमेंट। और ये सिंबल है, इसको क्या बोलते हैं? टाइड। क्या बोलते हैं इसको? टाइड। टेढ़े मेढ़े कुरकुरे जैसा दिख रहा है ये। हाँ, टी से टेढ़े मेढ़े, टी से टाइड, ऐसे याद रख लो। अब देखिए नॉट का मतलब क्या है? जीरो को वन कर दो, वन को जीरो कर दो, तो ये आंसर क्या हो जाएगा? इजी है, उल्टा करना है। जस्ट वन का जीरो, जीरो का वन। देन लेफ्ट शिफ्ट। लेफ्ट शिफ्ट क्या कहता है? अच्छा, लेफ्ट साइड कौन सा, राइट साइड कौन सा है, ध्यान होना चाहिए। देखिए ये हम लिख रहे हैं, कॉपी में भी आप ऐसे लिखोगे, दिस इज द लेफ्ट हैंड, दिस इज द राइट हैंड। Okay, so if I go to in that direction, it is called left shift, and if I move to this direction, it is called right shift. करना कुछ नहीं है, एक एक बिट को क्या करना है? शिफ्ट करना है बस। जैसे लेट सपोज मैंने कहा, लेट सपोज दिस इज x एंड आई राइट x2, तो दो डिजिट उधर भेज दो, इधर का x2 दो डिजिट इधर भेज दीजिए, बस इतना सही है। ओके, क्या करेंगे हम? ये देखिए, इस शिफ्ट करें, शिफ्ट कर दो, तो शिफ्ट का मतलब क्या है? ये जो लास्ट की दो डिजिट है ये खत्म हो जाएंगी, बाकी सारी शिफ्ट हो जाएंगी, तो क्या लिखेंगे हम? बताइए। वन वन ये लिख रहा हूं मैं यहां से, जीरो वन जीरो, और बाकी फिल इन द ब्लैंक्स को किससे भर दो? जीरो जीरो से भर दो। ठीक है ना? दूसरा राइट शिफ्ट करेंगे, इधर किसका दो? पीछे जो होती है संख्या, जीरो जीरो से भर दो, तो भर दो इसे, इजी है। अभी तो क्या होगा? इन दो डिजिट को हटा दो, बाकी सबको लिख दो। क्या लिखेंगे हम? जीरो वन वन जीरो वन जीरो जीरो। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, यहां पर टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स आपको कितनी रखनी है? 8 बिट लिखनी है। कितनी लिखनी है? 8 बिट। राइट नाउ ओनली कितनी बिट्स हैं? 3 3 6 और 1 7 ही है, तो हम इसको 8 करेंगे,
मैं इसको एक बढ़ा देता हूं, फिर पिछले एग्जाम्पल में भी एक बढ़ा देना, ठीक है ना। ये 0 लिखा मैंने, और 0 का नेगेशन क्या होता है, 1 होता है। शिफ्ट करेंगे तो उस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये 0 जो है ये यहां पर क्या आना है, शिफ्ट करेंगे, इस तरफ शिफ्ट करो इसे, तो ये देखो शिफ्ट किया हमने, अच्छा 0 वही आंसर था। ये लिखेंगे 1 1 0 1 0 0, और ये नए 2 0 और डाल दिए मैंने। इस वाले में इस तरफ शिफ्ट करना है तो इधर शिफ्ट करेंगे तो कितने 0 0 उड़ जाएंगे, 2 0, तो 1 से स्टार्ट होगा, क्या होगा, 1 से स्टार्ट होगा, तो 1 0, इसको ठीक कर देता हूं मैं, क्या हो जाएगा, ये 2 0 उड़ जाएंगे, यहां से स्टार्ट करें 1 0 1 1 0 1, और पीछे बची संख्या को 0 0 लिखते हैं, ठीक है। इजी है, यहां तक भी कर लोगे तो भी बहुत ही इजी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट ऑपरेटर पढ़ते हैं, बिटवाइज क्लियर हो गए हैं अभी। नेक्स्ट असाइनमेंट ऑपरेटर, हेडिंग लगाइए असाइनमेंट ऑपरेटर। Next is assignment operator. What assignment operator do? What the word meaning assignment? Assignment here refers to assigning a value to a variable. Assigning a value to a variable. Okay, a variable, there is certain a variable. A variable can accept any type of value. Okay, so if I write x equals to y, this is called assignment operator. क्या कहलाता है ये, असाइनमेंट ऑपरेटर। अच्छा ये कौन सी वैल्यू किस में जाएगी, x की वैल्यू y में जाएगी, y की वैल्यू x में जाएगी, इट मींस y की वैल्यू किस में जाती है, x में। तो देखो लेफ्ट साइड से वैल्यू किस में जाती है, राइट साइड में, तो ये एक्चुअली लेफ्ट टू राइट वर्क करता है, और ये जो लेफ्ट टू राइट है, राइट टू लेफ्ट है, इसे ही क्या कहते हैं, एसोसिएटिविटी। क्या कहते हैं इसे, एसोसिएटिविटी कहते हैं। वी विल डिस्कस एसोसिएटिविटी एज अ टॉपिक इन आवर फ्यूचर क्लासेस, बट ऐसे असाइनिंग होती है। ओके, सो दिस इज कॉल्ड असाइनमेंट ऑपरेटर। अब ये असाइनमेंट ऑपरेटर क्या क्या काम करते हैं, ये असाइनमेंट ऑपरेटर एक तो सिंगल असाइनमेंट ऑपरेटर है जो आपने अभी देखा है, और असाइनमेंट ऑपरेटर कौन सा होते हैं, दोज आर विच ऑल्सो रेफर्ड एज अ शॉर्ट हैंड ऑपरेटर। इनको शॉर्ट हैंड ऑपरेटर भी कहते हैं। लेट्स सपोज I want x equals to x plus 5. So what should I do? I will change it as a x plus equals to 5. ये दोनों का मतलब एक ही है, और हो गया ना ये शॉर्ट हैंड। This is a shorthand of this statement. So by this there are some operators, assignment operators, that are plus equals to, minus equals to, multiply equals to, divide equals to, floor equals to, remainder equals to, ये सारे ऑपरेटर हैं आपको मिलेंगे। ओके, समझ में आ गया ना, क्लियर सभी को, ठीक है ना। अच्छा एक ऑपरेटर है जिसके बारे में हम बात नहीं की है, जिसको वो है डबल बार मल्टीप्लाई लगाते हैं, क्या बोलते हैं इसको, डबल बार मल्टीप्लाई लगाते हैं, ये पावर ऑपरेटर है। ये क्या है, पावर ऑपरेटर है। ओके, तो ये भी ऑपरेटर हो जाता है, ये पावर ऑपरेटर होता है। अभी बिटवाइज ऑपरेटर की बात की, वो भी अवेलेबल है, एंड और नेगेशन भी अवेलेबल है, तो ये सारे ऑपरेटर अवेलेबल है। ओके, इसी के साथ में हम जो सॉरी नेगेशन नहीं होगा, नेगेशन तो एक क्या है, यूनरी ऑपरेटर है। यूनरी ऑपरेटर तो एक ही वैल्यू लेता है, दो वैल्यू लेता ही नहीं है। दूसरा क्या होता है, एक्सऑर भी हमारा बाइनरी ऑपरेटर है, ये भी दो वैल्यू एक्सेप्ट करता है, तो इसको भी लिखो हमने। इसी प्रकार हमने शिफ्टिंग ऑपरेटर भी हमारे पास अवेलेबल है। ओके, शिफ्टिंग ऑपरेटर भी हमारे पास अवेलेबल है। समझ में आया सभी को। सो हाउ इट विल वर्क, लेट सपोज आई राइट x एंड 5, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया। कोई भी ऑपरेटर है, जैसे लेट सपोज मैंने यहाँ लिखा x एंड 5, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब है x इक्वल्स टू x एंड 5। तो 5 की जो भी वैल्यू होगी उसका बाइनरी डिजिट, x की जो भी होगी उसकी बाइनरी डिजिट,
दोनों से क्या निकलेगा आंसर, और उसका क्या होगा बाइनरी, उसके बाद उसका क्या चेंज होगा डेसिमल में, वो डेसिमल किस में असाइन हो जाएगा एक्स के अंदर। समझ में आया सभी को? ठीक है ना, फिर से बताता हूं। असाइनमेंट ऑपरेटर जो बाइनरी ऑपरेटर तो वही वर्क करते हैं। जैसे मैं लिखा x 5, तो अब होगा क्या, राइट शिफ्टिंग हो रही है 5 से, तो एक्चुअली ये इसका मतलब ये है, इट मींस x की कोई ना कोई बाइनरी वैल्यू होगी, 5 की भी कोई ना कोई बाइनरी वैल्यू होगी, दोनों वैल्यू से क्या मिलेगा, एक बाइनरी वैल्यू मिलेगी। उस बाइनरी वैल्यू का ये क्या कैलकुलेट करेगा डेसिमल, और डेसिमल वैल्यू किस में असाइन हो जाएगी x में। ओके, इट मींस इस पूरे का आंसर मुझे क्या मिलेगा, एक डेसिमल नंबर, और डेसिमल नंबर वो किस में असाइन कर देंगे x के अंदर। समझ में आया? क्या साइन हो जाएगा x के अंदर। इज इट क्लियर टू एवरीवन that how this assignment operator will work? Okay, say yes sir, it is clear. Okay, so now next is our special operator, and this is the most important operator in Python. Okay, these are the important operator, but we regularly use these operators which are special operators. हम इसका बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं जो स्पेशल ऑपरेटर की कैटेगरीज में आते हैं। तो राइट द हेडिंग स्पेशल ऑपरेटर। So what are the special operator? Python language offers some special type of operator like जैसे आइडेंटिटी ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर, है ना, ये कुछ स्पेशल टाइप के ऑपरेटर है। ओके, सो फर्स्ट हम पढ़ेंगे आइडेंटिटी ऑपरेटर। तो लिखिए हेडिंग आइडेंटिटी ऑपरेटर, उसमें हम पढ़ने वाले हैं। इसमें दो ऑपरेटर होते हैं, एक का नाम होता है इज, एक का नाम होता है इज नॉट। पहले का नाम क्या है इज, दूसरे का नाम क्या है इज नॉट, और ये दोनों के दोनों क्या काम करते हैं, आइडेंटिटी ऑपरेटर का काम करते हैं। ठीक है ना? So what the meaning of identity? It means the operands are identical or not. The word here identical means, let's suppose I write a small letter A, B, C, and in the second variable there is a letter A, B, C, and both are in lower case, and if I use is between them, it will give me true. It will give me true. It means this always give me true or या तो क्या रिटर्न करेगा मुझे ट्रू, या क्या रिटर्न करेगा ये मुझे फॉल्स रिटर्न करेगा। इट मींस इट इज अ बूलियन टाइप ऑफ ऑपरेटर। बूलियन टाइप ऑपरेटर है जो कि हमें वैल्यू रिटर्न करके क्या करता है, ये हमको ट्रू एंड फॉल्स के रूप में वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक है ना? दे आर यूज्ड टू चेक if two values are located or the same part of the memory। अब देखो यहां पर जो वर्ड है द सेम पार्ट ऑफ मेमोरी, जो कह रहा है कि आइडेंटिटी ऑपरेटर ये चेक करता है कि जो वैल्यू है जहां से आ रही है वो वही स्टोर है क्या। तो इसको सीखने के लिए, आइडेंटिटी ऑपरेटर को अच्छे से समझने के लिए पहले हमें ये समझना होगा कि पाइथन वैल्यूज को स्टोर कैसे करता है। उसके बाद हमें समझ में आएगा कि ये आइडेंटिटी ऑपरेटर एक्चुअली करता क्या है। ओके, सो पहले मैं आपको ये सिखाता हूं कि वेरिएबल स्टोर होते कैसे हैं। ओके, चलिए। सो जैसे लेट सपोज आपने लिखा x इक्वल्स टू 10, तो पाइथन क्या करेगा कि पाइथन का इंटरप्रेटर जो रैम होती है, जिसे हम प्राइमरी मेमोरी कहते हैं, प्राइमरी मेमोरी कहते हैं, जिसे हम रैम कहते हैं, इस रैम के अंदर एक जगह स्पेस ले लेगा, उस स्पेस को क्या दे देगा 10 वैल्यू असाइन कर देगा। ओके, बट आई हैव राइट x इक्वल्स टू 10, तो वो क्या करेगा मेमोरी में ही एक वेरिएबल बनाएगा जिसका नाम क्या रखेगा x, और उस x से क्या करेगा इसको इंडिकेट करना
शुरू कर देगा, और इस इंडिकेशन को क्या बोलते हैं, रेफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, रेफरेंस। x रेफर टू 10 ऐसे। ओके, इफ आई राइट y इक्वल्स टू 10, अगेन मैंने क्या लिखा, y इक्वल्स टू 10, तो ये क्या करता है, उसको पता है कि 10 वैल्यू ऑलरेडी स्टोर्ड है, तो वो कोई नई जगह ना बनाकर एक वेरिएबल यहां एक इंडिकेशन बनाता है, और ये भी किसको इंडिकेट करना लग जाता है, इसी वैल्यू को इंडिकेट करना लग जाता है। ओके, अब पाइथन के अंदर ये जो वेरिएबल्स हैं, ये जितने भी वेरिएबल्स हैं, इनको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं इनको, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेरिएबल हम आगे भी पढ़ेंगे, लिस्ट है, टपल है, सेट है, बहुत सारे होते हैं, तो ये सब क्या कहलाते हैं, ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ऑब्जेक्ट। और ये जो चीज यहां हमने देखने को मिल रही है, इनको कहते हैं वैल्यूज। क्या कहते हैं, वैल्यूज। और हमारा जो इज ऑपरेटर है वो यही चेक करता है कि क्या दोनों वेरिएबल, जैसे मैंने लगा x इज y, तो यही चेक करता है कि इज ऑपरेटर लगा है, इसका मतलब x जिसको रेफर कर रहा है, क्या y भी उसी को ही रेफर कर रहा है। इस कंडीशन में इज क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। समझ में आया। आइडेंटिटी ऑपरेटर एक्चुअली ये चेक करते हैं कि जो वेरिएबल्स हैं, जो उनके ऑपरेंड्स हैं, वो क्या पर्टिकुलर मेमोरी में एक ही जगह को क्या कर रहे हैं, रेफरेंस कर रहे हैं क्या। अगर वो दोनों एक ही जगह को रेफरेंस कर रहे हैं तो ये हमेशा क्या देते हैं, रिजल्ट ट्रू देते हैं, अदरवाइज ये रिजल्ट क्या देते हैं, फॉल्स देते हैं। समझ में आया आपको। इसीलिए पाइथन क्या है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। क्यों केस सेंसिटिव है, लेट सपोज अगर मैंने यहाँ पर एबीसी लिख दिया होता और नीचे वाले में मैंने कैपिटल एबीसी लिख दिया होता, सो इट विल स्टोर दीज टू स्ट्रिंग्स और वर्ड्स इनटू टू डिफरेंट प्लेसेस। दो अलग अलग जगह पे स्टोर करता, इट मींस दोनों की रेफरेंसिंग भी क्या होती, अलग अलग होती, तब हमारा इज ऑपरेटर क्या रिटर्न करता, फॉल्स रिटर्न करता। बट हमारी नजर में तो कैपिटल एबीसी और स्मॉल एबीसी क्या है, एक ही बात है, लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं है, दोनों को वो अलग अलग ट्रीट करता है। सो पाइथन में जो ये सेविंग की टेक्निक है, ये बहुत ही अच्छी टेक्निक है। इससे डुप्लीकेट मेमोरी एलोकेशन प्रॉब्लम को सॉल्यूशन इजीली हो जाता है। डुप्लीकेट मेमोरी, लेट सपोज अगर प्रोग्रामिंग के अंदर 10 नंबर्स को स्टोर करने वाले 1000 अगर वेरिएबल बन जाते हैं, तो हमारे पास 1000 जो प्लेसेस हैं वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी, एक्वायर हो जाएंगी, और वो मेमोरी क्या होगी हमारे लिए, वेस्ट होगी। क्यों, क्योंकि सभी एक ही वैल्यू को इंडिकेट कर रहे हैं। तो पाइथन क्या करता है, इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग न्यू स्पेस for the particular same value, it is actually referencing the variable to the particular place of the single value। सिंगल वैल्यू को ऊपर सारी की सारी क्या करती हैं, सभी क्या करती हैं, रेफरेंस करना स्टार्ट कर देती है। समझ में आया किसी सबको। ओके, सो दैट्स व्हाई मैंने ये बोला है दैट दे आर यूज्ड टू चेक इफ टू वैल्यूज आर, ध्यान से सुनना, are located on the same part of memory। आया समझ में। They are used to check if two values are located on the same part of memory। Two values are located on the same part of memory, then it will gives me true, otherwise it will gives me false। समझ में आया कुछ। Okay, so here the word identical means that variables, the values of that variables are at a single place, एक ही place पर है। It is called identical, not the कि ये वर्ड और ये वर्ड एक जैसा, ऐसा नहीं है। प्लेसेस एक जगह होना चाहिए, कि दोनों की दोनों रेफरेंसिंग क्या होना चाहिए, एक जगह होना चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि यस इट इज आइडेंटिकल। डन, क्लियर सभी को, है ना, क्लियर है ना सभी को, ठीक है ना। यू कैन चेक दिस ऑल्सो, आप भी चेक कर सकते हैं। द फंक्शन क्या है उसका, आईडी। ओके, सो लेट सपोज मेरे पास एक प्रोग्राम है, दिस इज द इको ऑफ द
एडिटर मैं बताऊंगा इसके बारे में राइट नाउ। चलो मैं इसको हटा देता हूं, आप कंफ्यूज जाओगे बच्चे। मैंने लिखा x equals to 10, मैंने लिखा y equals to 10 and I write id of x and I write id of y. लेट सपोज ये दोनों के दोनों जहां स्टोर है उसकी आईडी क्या है 101, तो इसकी भी आईडी क्या होगी 101, क्योंकि ये दोनों एक ही जगह को क्या कर रहे हैं इंडिकेट कर रहे हैं। सो अगर मैं यहाँ लिखता हूँ आईडी सॉरी अगर मैं यहाँ लिखता हूँ कि x और मैं लिखा is y, तो ये मुझे क्या देगा ट्रू देगा। क्या देगा ये मुझे ट्रू देगा। क्यों देगा? क्योंकि दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं एक ही प्लेस को क्या कर रहे हैं इंडिकेशन दे रहे हैं। डन। और नॉट इज नॉट का मतलब क्या है जस्ट उल्टा। इस का जो भी आंसर आएगा उसको क्या कर दो नॉट क्या करता है चेंज कर देता है। तो अगर मैं लिखता हूं एस इज नॉट वाई तो आंसर क्या आएगा गारंटेड। तो सीधा सा है x इज y का आंसर निकालो और फिर इसको क्या कर दो नेगेशन कर दो। तो x इज y इज ट्रू, द नेगेशन ऑफ ट्रू इज फॉल्स, इट विल गिव मी false as a result. I think it is clear to all of you that what is the first special operator, identity operator. The id function is used to generate or access the id where the data is saved. तो ये डेटा सेव है ना, तो यहाँ पर ये मेमोरी के अंदर एक प्लेस पे सेव है जिसका एड्रेस क्या होगा 101 है ना। मेमोरी बहुत बड़ी होती है तो उसमें डेटा जब भी स्टोर होता है तो कहीं किसी न किसी एड्रेस पे स्टोर होता है। हम डिटेल में बात करेंगे व्हाट इज एड्रेस, क्या है एड्रेस के बारे में डिटेल बात करेंगे, बट फॉर नाउ मेरे ख्याल से आप सभी को समझ में आ चुका होगा। ओके, so today we have learned that what are binary operators, what are assignment operators, as well as we have learned the identity operators also. Okay, tomorrow we will discuss the next operator which is membership operator, and by then the operator topic is complete, and then after we will talk about the rest of topics which are in the PDF. Okay, so that's for now beta. I think you all have learned the topics very well. Okay, thank you.